So we have two very young artists today, which we have got for our chat show. And Deepa, if you can tell more about our artists today. Yes, so let's bring in Anupam. There's so much to talk about her. So let's bring in our first guest. Our Yes. first guest is a classically trained, concept based performer. She's a choreographer, and with years of experience in the field of dance and choreography, she is an electrifying performer. She's also an ambassador of performing arts and culture. Apart from having a panache of different dance forms, basically Kathak, where she's an expert, she's also an expert with classical, folk, ballet, Sufi, Kathak, Rajasthani, Lavani, fusion, and improvisation of all these forms put together. She's Wow. creative, versatile, and her style of choreography is very, very accessible. She is not only a dancer, a choreographer, she is also active in the film industry, advertisement, modeling, and television industry. She's modeled for advertisements and also been shows very, very popular television shows like Lapata Ganj and Savdhan India. And one more thing I'd like to tell you, she's been associated with a lot of brands and some of the biggest brands in the country. I can just go on and on about her. She is Yes, full I'm of sure. energy. And I will not stop if I continue saying about her. Without any delay, let's welcome Amrita Joshi. Hello, Amrita. Welcome to Hi, Sukoon Amrita. Inside Chat. Hi Hi, Anupam, hi Amrita. Deepa. Hi. Welcome to the show. Hi. Good evening. How Good are you evening, how are doing, you? Amrita? I'm Good. good, how are Good. you guys? Very good. Amrita, we've been watching you. You're very, very active on lives on Facebook. I love what you're Yeah, doing on Facebook. It's thank really Yes. you so amazing. much. So, Amrita, you are a professional dancer. You're an expert in so many dance forms. There are so many modules and forms which you specialize in, right? But they Yeah, say the true form of dance is when you dance for your own self. Okay. yeah. So, what is dance for you? दीपा, हम सब जो डांस करते हैं लाइक एज एन आर्टिस्ट, अगर मैं Yeah. कहूँ तो ये समझते हैं कि हम दूसरों के लिए डांस करते हैं, बट जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं या जब हम परफॉर्म करते हैं, बट बेसिकली आप अपने सोल के साथ डांस कर रहे होते हैं और उस कम्युनिकेशन से जो एक्सप्रेशन निकलता है वो आप ऑडियंस तक पहुंचाते हो। सो जब आप डांस करते हो वो आप अपने लिए ही डांस करते हो। सो दैट इज that's what I believe, क्योंकि हम डांसर बॉडी एंड माइंड से जो डांस करते हैं, बट सोल जब तक कंबाइन नहीं होता है आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते और लोगों को नहीं पहुंचा सकते। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप अमृता, ये हाँ, चीज। so for me dancing is dance with your soul. You are communicating with your soul or maybe with your God. आपका एक आपके माइंड में होता है। I think ये जो आर्टिस्ट होते हैं, सिंगर हैं, डांसर हैं या पेंटर हैं, जब वो आर्ट पे काम करते हैं, so they are communicating with their God or their soul, like जिस भी तरीके से उन्हें डिफाइन करना है। So same I all believe that. एंड जो मेरा अपब्रिंगिंग रहा है, अगर मैं कहूँ कि डांस मेरे लिए क्या है, तो बहुत ही कल्चरल और बहुत ही ट्रेडिशनल अपब्रिंगिंग रहा है। तो डांस जो है वो हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन का पार्ट रहा है हमेशा से। बिल्कुल। या सो दैट्स व्हाई दैट इज अ अट्रैक्शन फॉर मी कि जो हमारे इंडियन डांस फॉर्म है, हमारे इतने डांस फॉर्म्स हैं, या अगर हम कहें कि फोक डांसेस है, कॉस्ट्यूम्स, उसका जो रिदम है, म्यूजिक है, इतना कलरफुल है। तो मेरे लिए डांस एक हेरिटेज है, एक हमारा कल्चर एंड ट्रेडिशन है, जो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आते रहना चाहिए, प्रमोट होते रहना चाहिए, हमारी यंग जनरेशन तक पहुंचना चाहिए। जो इतना फन और कलर है वो सब तक पहुंचना चाहिए। Actually, Amrita, the way you're promoting the dance forms, it is phenomenal. I mean, people are Yes. loving what you're doing, and that's a very Anupam, I think it's a very Yeah. nice way of Yeah. defining Also, what dance yes, yes. Also, when she's talking a lot in passion about dancing, but Yeah. there is also a very different dimension to dance, which is related to fitness. A lot of people, Yeah. do dancing have started dancing as a form of adopting fitness in their lifestyle.
So how do you see that how come dance from an art form it has actually become a healing module for a lot of people who are looking for fitness? Absolutely. एक्चुअली पहले जो डांस है वो इतना एक प्रोफेशन नहीं था और लोग उसको लेके अवेयर नहीं थे, और अवेयर थे भी तो उनकी सोच डांस को लेके या डांस करियर को लेके उतनी अच्छी नहीं होती थी। इतने सालों में डांस में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ है और उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि आजकल लोग डांस फिटनेस के लिए यूज करने लगे। वो चाहे आप बोल दो या आप सिर्फ बॉलीवुड डांसिंग बोल दो, तो लोग फिटनेस के लिए जब से यूज करने लगे ये एक बहुत ही बड़ा प्रोफेशन हो गया है। पीपल आर अर्निंग देयर ज़ुम्बा क्लासेस, एरोबिक क्लासेस और डांस क्लासेस, एंड एक रिस्पेक्ट की तरह लोग अब इसे देखना शुरू करा है। एंड आई थिंक है योगा है उससे भी ज्यादा बेटर सब लोगों को ये लगता है कि हम डांस करें क्योंकि म्यूजिक होता है, एंड आपका स्ट्रेस आप खत्म कर देते हो क्योंकि म्यूजिक भी होता है, आपका मूवमेंट होता है। एंड अगर मैं इसे इस तरीके से दिखाऊं कि डांस जो है, अगर हम अपनी कल्चर की बात करें तो वो एक सेलिब्रेशन का पार्ट रहा है हमारी लाइफ में। वो चाहे पुराने जमाने में जब कुछ नहीं होता था तब भी हर फेस्टिवल डांस होता था, इसलिए बैसाखी है या गरबा है या और भी आपके डांस फॉर्म देखिए, तो शायद वो भूल चुके थे वो फन। बेसिकली सेलिब्रेशन इज मोर ऑफ अ फन, वो सब चुके थे। लेकिन जैसे ही एक ये फिटनेस वाली चीज आई, ग्लोबलाइजेशन हुआ, डिजिटल मीडिया का आना हुआ, तो फिटनेस फॉर्म में और उसको एज अ फन के फॉर्म में लोगों ने लेना शुरू किया। एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है कि डांस तो एक फिटनेस का जरिया है ही, बहुत अच्छा। आप सीख भी जाते हैं कुछ स्टेप्स एंड लोग बहुत लाइक करते हैं, फील करते हैं। Right. I have a question from a viewer who is viewing us right now. So Ankit is asking Amrita that how much you are missing the stage during this pandemic which we are all facing. Every day. Every day. I'm sure. Yeah. I mean, 15 दिन ठीक था कि अच्छा ठीक है, ओके 15 डेज का लॉकडाउन है तो आप थोड़ा सा चिल कर लो, थोड़ा एंजॉय कर लो, आपका स्केड्यूल होता है। लेकिन बाद मतलब आई थिंक आई हैव रियलाइज माई लव फॉर डांसिंग। ये एक पता ही था कि पैशन है और आपको स्टेज बहुत पसंद है, बट अभी बहुत अच्छे से रियलाइज हो गया कि स्टेज कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है मेरी लाइफ का, एंड आई एम मिसिंग इट एवरी डे, एवरी सेकंड। हमने सोचा ही नहीं था ये 15 दिन का लॉकडाउन महीनों में चला जाएगा। We never thought it's going to be that long. And the live audience, स्टेज का जो फन होता है ना, वो जो लाइव ऑडियंस और उसका रिएक्शन होता है ना, आई एम मिसिंग दैट लाइक एनीथिंग। I totally understand, totally agree. You said, Amrita, you said something very nice, that dance has always been a part of our culture. हमारे हर celebration, हर फेस्टिवल की शुरुआत और हर फेस्टिवल के लिए डांस कितना इम्पोर्टेंट था, जो शायद लोग जानते थे, जो people knew about it, but people never really accepted it as a form of art. It was all about celebration. Now we've come to dance combining with fitness. We're doing Zumba, dance is a part of yoga, dance is a part of Bollywood dance is a part of the fitness regime. So everybody's talking about dance, everybody's talking about the importance of dance. There's one golden question that I'd like to ask you. This is for me and a lot of people who've got 2 left feet. Can everyone dance? Sorry? Can everyone dance? I feel that everyone can dance and हर किसी की अपनी स्टाइल होती है। See, हम एक ह्यूमन बॉडी क्या है, एनर्जीज है, सोल क्या है, एनर्जी है। तो आपको जैसे ही म्यूजिक स्टार्ट होगा यू विल फील सम वाइब्रेशन। आप अगर 3 साल के बच्चे को भी अगर आप म्यूजिक लगा के छोड़ देंगे, वॉक नहीं करना जानता है, वो बोलना नहीं जानता है, बट ही विल डू सम और अदर मूवमेंट ऑन द म्यूजिक, तो उसको किसने सिखाया और उसने है, तो मतलब कि आप डांस कर सकते हो। इवन एक 75 या 80 इयर्स ओल्ड के बुजुर्ग के सामने भी आप म्यूजिक लगा दोगे तो वो एंजॉय करेगा, दिल में भी मूव लाइक दिस, और किसी भी तरीके से। तो डेफिनेटली सब लोग डांस कर सकते हैं, सबकी अपनी स्टाइल होती है। जब मैं किसी नॉन डांसर को मैं सिखाती हूँ तो क्या प्रॉब्लम होती है लोगों में, ये प्रॉब्लम
होती है कि हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम होती है कि हम ये स्टेप्स करके अच्छे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है। डांस हम किसी को भी सिखाएं तो वो बंदा, किसी को 1 हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा, वो सीख जाएगा। So I don't teach dance and I teach dance. I teach them confidence that you can look good, you can do it, and dance is in you. You are a dance. Just enjoy, feel free and dance. So I believe that everyone can dance. Totally agree with you, Amrita, because when we dance at weddings and even at festivals or any kind of functions, हमारा thought process वो enjoy करने से ज्यादा ये होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं। हम कैसे दिख रहे हैं। हम अच्छे लगेंगे, अच्छे लगेंगे। लोग क्या सोचेंगे, लोग हम पे हंसेंगे, वही सारा वो thought process वही होता है कि how are people viewing you। आप सब डिस्क पार्टी करते हैं, हाउस पार्टी करते हैं, आई थिंक वहां पे हर कोई डांस कर सकता है। अगर आपको पता है कि अच्छा सब लोग ड्रिंक करके बैठे हैं, कोई देख नहीं रहा है, तो आप लोग सडनली डांस करने लग जाएंगे। एंड यू so I think that is the thing. I have a very interesting question here from one of our viewers. Ashwini is asking, how is dance therapy different from regular dancing? Like we said that dance has been moved into the therapy angle. So how do we differentiate between those two? क्या difference है उन दोनों में, जो डांस हम डांस की तरह कर रहे हैं और जो डांस हम फिटनेस की तरह कर रहे हैं? बेसिकली जो डांस है वो हमेशा से ही कह सकते हैं वो आर्ट फॉर्म रहा है और बहुत ही आपको बैलेंस करने के लिए रहा है। अगर आप हमारे हिस्ट्री देखें, आप अगर त्रेता युग देखें या आप सतयुग देखें, तो वहां पे राजाओं को या राजाओं के बच्चों को, लड़का हो या लड़की, सबको कुछ कलाओं का ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी। उसमें डांस भी एक था। हमारे भगवान श्री कृष्ण खुद एक बहुत बड़े डांसर थे, तो इससे पता लगता है कि इस चीज की इम्पोर्टेंस कितनी बड़ी है। तब डांस जाता था अस्त्र और शस्त्र के साथ, ताकि आप आपकी बॉडी को समझे, आपको समझ में आए कि बैलेंस क्या है, आपको अपने बॉडी मूवमेंट और आप अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर सके। तो बेसिकली वो एक मूवमेंट थेरेपी ही हो गई है। वो तो धीरे धीरे, क्योंकि उस चीजों में मेहनत लगती है, तो लोगों ने उसको फन है, पार्टी है, और बीच में तो डांस जो आर्ट है वो गायब ही हो चुका था। ये तो अभी आ चुका है। तो मूवमेंट थेरेपीज वगैरह में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जब भी हम डांस नॉन डांसर्स को सिखाते हैं या हम फिटनेस के लिए सिखाते हैं, तो सिर्फ उस सिखाने का तरीका अलग हो जाता है, बट एंड रिजल्ट इज सेम। जहां आप अपनी बॉडी को लाइट फील करते हैं, फ्लेक्सिबल फील करते हैं, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या मूव करना है, आपका बैलेंस आपको समझ में आएगा। एंड द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज द कोऑर्डिनेशन। इट इज नॉट इजी कि आप राइट लेग, लेफ्ट हैंड, राइट लेग को कॉम्बिनेशन म्यूजिक पे करके डांस कर पाए। इट इज नॉट इजी। सिर्फ तरीके चेंज हो जाते हैं, अदरवाइज इट्स वन एंड द सेम थिंग। Yes, I'm receiving a lot of comments and a lot of questions, so I don't want to miss any of them. So Deepa, there is a comment for you. Someone has revealed that you can dance, so you can't deny that you someone are has seen me dancing at a party or at a house party. So Pramod says that very interesting, Amrita. Confidence is the general key when dancing in public. That's so true. Confidence is the key when you are dancing. And Kushma says, Amrita, you rock. And we have a couple of questions coming in. Ankit is asking how does dance therapy help mentally? And a similar question is what Roshan is also asking, that how do you find the motivation to dance during a dull day or long day at work? So everyone is somewhere looking for dance. Yeah, dance as a way to de-stress, or to enjoy, or to transform your mood. Maybe that is what our conversation is hinting also. So what is your take on that? I think Anupam, everybody here, I mean dancers, non-dancers, I'm sure everyone, like Amrita said, the minute music comes on, there's a vibration and वो की टैप होना शुरू हो ही जाते हैं, चाहे आपको डांस करना आता हो या नहीं आता हो। So मैं one by one आंसर करती हूँ कि I think था कि ये कैसे एक मेंटली एक थेरेपी।
तो डांस, जैसे मैंने कहा कि डांस जब आप सीखते हो तो आप म्यूजिक, आपकी बॉडी एक रिदम को समझती है, एनर्जीज को समझती है, वाइब्रेशंस को समझती है, एंड कोऑर्डिनेशन से आपका माइंड जो है वो बहुत फास्ट, यू कैन वर्क ऑन योर माइंड। तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को डांस सिखाया है जो कि कुछ मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं या डिप्रेशन में है, तो वहां पे उनके माइंड को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, योर राइट माइंड, योर लेफ्ट माइंड। सो डेफिनेटली अगर आप म्यूजिक के साथ आपकी बॉडी को रिदम के साथ, जो आउटसाइड रिदम है और आपकी अंदर की एनर्जी, अगर आप उसको बैलेंस करते हो तो आपको मेंटली बहुत फर्क पड़ता है। एंड you're dancing and you're connecting with the music, it is the best time for you and your soul. तो आप जब अपने साथ होते हो, अवेयर होते हो, who are you? So डांस जो है वो आपको अपने आप से अवेयर करवाता है, and that's where you grow mentally. Okay. Yeah, and I think second question was I forgot the question. I think full day motivation for the dancing. Yes. How do you motivate yourself after a long day at work? Long day at work. No, I think my work is only dancing. So either I'm teaching or I'm performing. So for me, it's never like a dull day. Every day I'm like, अरे आज कुछ नया create करना है, तो मुझे अपने आप energy आ जाती है. So for me, like dancing is 24/7. Yes. So there's no thakan, there is nothing that says differentiate between work day and a dance. Like a, I feel more like low type, because right now we are not doing practicing. और जब स्टेज की परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करते हो तो वो बहुत ही अलग लेवल की होती है, अभी थोड़ा बहुत पता है। तो now I feel कि shit, डांस उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, now I'm missing it more. I'm sure, yes. So when we were starting Sukoon as a platform for 360-degree holistic wellness, there were three elements which we were looking for, which is mind, body, and spirit. So how do you connect dance to these three? Like, for your mind, obviously you have spoken a lot about how it is affecting men. But since Sukoon as a platform, we promote the healing through mind, body, and spirit. So what is your take for dance for these three? I think जैसे अभी भी मैंने बोला है कि dance is a part of a meditation. It is a very big part. और डांस, I generally feel that everybody should dance, and I think हर एक बच्चे को आपको डांस की और म्यूजिक की ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब आप सीखते हो ये चीजें तो आप अपनी सोल से कनेक्ट कर सकते हो, इसमें इतनी पावर है। और जब आपको अपने ही लाइफ की, अपने ही बॉडी की अवेयरनेस हो जाती है तो आप अपने आप से you start loving yourself. And dance only, I mean, आप ही इमेजिन करो, आपको ये लगता है कि अरे आज हमने फ्राइडे तक काम किया है, सैटरडे संडे क्लब में जाके डांस करना है, हमें डांस करना है, अपना स्ट्रेस निकालना है, and when you dance you just don't know about anything else. तो माइंड और बॉडी के लिए डांस बहुत जरूरी है। और डांस के साथ जैसे दूसरे, अगर आप वर्कआउट की बात करें, जिम है या योगा है, एक हेल्पफुल चीज हो जाती है कि आप म्यूजिक को कनेक्ट कर सकते हो। Right. तो आप म्यूजिक पसंद है या हिंदी म्यूजिक पसंद है, बेसिकली वी कनेक्ट टू द म्यूजिक, एंड देन वी कैन नॉट जस्ट डांस लाइक दिस। तो वहां आपकी बॉडी, आपकी जब आप सीखते हैं तो आपकी बॉडी, आपकी सोल पे काम होता है। ये शायद बहुत से लोग जब करते हैं तो नहीं समझ पाते हैं, बट आप एक डांस क्लास खत्म करेंगे तो आपको लगेगा वाओ कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपने डे के बाद भी अगर आपने डांस किया है, आप करते ही हो डांस इसलिए ताकि आपको अच्छा फील हो, आपको मेंटली पॉजिटिव फील हो। सो आई थिंक इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डांस इज लाइक अ मेडिटेशन। मे बी यू डांस एज अ प्रोफेशनल और you dance as a non-dancer. So it has a power. Yes. That's very well said, Amrita. That's really, really very well said. Amrita, the current scenario, let's talk about what's happening currently. People are locked down at home, na dance classes ho rahi hain, na clubs khule hain. So there is no way people are going out and dancing, right? So all your fans, all the people who follow you, all the people who are watching us, आप थोड़े से at least 3 टिप हमें दीजिए
how people can practice this art, the form of Okay. dance at home for their overall wellness. ओके सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो दे कैन ज्वाइन एनी ऑनलाइन क्लासेस. बेसिकली बेटर होता है क्योंकि आपको कोई सिखा रहा है. अदरवाइज आजकल तो डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी चीज हो गई है कि आप इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास, डिफिकल्ट स्टेप, इजी स्टेप्स, वहां पे ट्यूटोरियल्स है. तो आप कोई भी एक वीडियो जो आपको लगता है कि आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप उसे ले लीजिए, सीखिए, और उसके बाद वो सीखने के बाद आप मिरर में देखकर परफॉर्म करिए, प्रैक्टिस करिए. 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, जो भी आपको लगता है आप रोज कर सकते हैं, एंड देन उसको आप बार बार पॉलिश करिए. क्योंकि ऑफ कोर्स अभी लॉकडाउन है, अगर आपको कोई नहीं सिखाएगा तो आपको अपना टीचर भी बनना पड़ेगा. सो बेसिकली यू हैव टू ऑब्जर्व एंड देन. तो ये एक चीज है जो कर सकते हैं, एंड आपको थोड़ी कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी. एंड कई बार ये हो जाता है जब भी आप सीखने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है यार मेरे को तो ये नहीं आ रहा है, मैं तो नहीं कर सकता, एंड देन आप गिव अप कर देते हो. बट यहाँ पे सब लोगों को मोटिवेट करना चाहूंगी कि आई एम अ प्रोफेशनल डांसर, बट मुझे भी नया डांस फॉर्म या नई स्टेप सीखने में टाइम लगता है. बट वॉट वी नो दैट प्रैक्टिस 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 इज द ओनली थिंग. तो आप एक वीडियो उठा लीजिए जो आपको ठीक लगता है, आप उसकी स्टेप्स को कॉपी करिए, सीखने के बाद उसको मिरर में देख के खुद से चेक करिए कि ये सही है, ये गलत है, and then you can dance on the music. So I think this is the best way that you can do it in the lockdown, or join online classes. That's superb. So घर पे करके obviously you're learning something new, you're learning an art form, Yeah. your fitness is taken care of, your mental health is taken care of, आपका stress Yeah. निकल जाता है. So all that combined together, I think that's really brilliant, Amrita. Thank you so much for giving us this. And a lot of people yeah. are again commenting, so I'll Asking take few of the questions. comments. Yeah. So thank you for joining. Harbinder Singh Bedi is here. Ankit Ishan Verma. We have Preetam Mondal joining in. We have Priyanka Sharma joining in. Thank you so much everyone for joining in. Ashwini is asking what kind of issues can dance therapy help with, and Harbinder has a different question which says that how important it is to make up to look presentable while dancing, or is it at all important? So you know. Of course, अगर आप प्रोफेशनली डांस कर रहे हैं स्टेज पे, तो अगर मैं किसी कैरेक्टर को प्ले कर रही हूँ, या सपोज मैं क्लासिकल डांस कर रही हूँ या मैं वेस्टर्न डांस कर रही हूँ, जब तक मेरा मेकअप, मेरा ओवरऑल लुक उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो लोगों को वो नहीं कनेक्ट होगा. क्योंकि उनके तो दे वांट यू नो देयर आई कैंडी वाला चीज उनको चाहिए, कि उनके लिए तो उनकी आंखों को जो वर्चुअल है वो अच्छा लगना चाहिए. तो आपका कॉस्ट्यूम एंड मेकअप में परफेक्ट होना चाहिए. एंड आई थिंक अच्छा डांसर होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप क्या पहन के और क्या करके आप परफॉर्म कर रहे हो. सो दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, yes. I So agree, also- Amrita. When you see yeah. someone on stage, the visual delight automatically helps you connect with the art. So it's like a combination of both. Right. And this is the way that you speak. आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो, जब तक आप उसको सही तरीके से एज एन आर्टिस्ट एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो एक नॉर्मल ऑडियंस तक वो नहीं पहुंच सकता है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है परफॉर्मर की, that you have to look good. Right. Yes. Also, there is a direct inquiry for you, Amrita, that Miss Pinto wants to know that what kind of dance style do you teach? I teach classical also. I'm a trained Kathak dancer. So one is that dance form, and then I teach Bollywood. So Bollywood में western, classical सब combination आ जाता है Indian dancing का, and basically Bollywood dancing. कोई डिफिकल्ट नहीं है कोई भी डांस फॉर्म सीखना. मैं वही कहती हूँ कि हमेशा आपको अगर सीखना चाहते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे. आपको एक टाइम देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा. एंड देन कंटिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड. सो दैट इज समथिंग न्यू कि भाई मुझे सीखना है, एंड नहीं आएगा या कितनी बार गलत होगा. दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग व्हेन यू आर लर्निंग any art form. So that should be your attitude when you are learning dance. So nothing is difficult. Totally agree with you on that. Yes. Also, many times say, I don't know, a lot of Indians do that. Whenever we are happy, we want to dance. So is it like
is it like only situation where we should dance, or there are other mood we can dance on? It's a very, I know this is sounding a little, but this is how the culture is, that whenever we are happy, whenever we are having a wedding at home, we are all in that dance mode whenever we are happy. So is it mood related, or is it like anyone can dance anytime? डांस तो हर मूड का होता है, जैसे कि नवरस होते हैं और भगवान शिव ने भी किया है जो कि गुस्से में किया है। सो डांस ऑप्शन भी है, अगर आप डांस ऑप्शन बोलते हो तो हर एक मूड का डांस होता है। डेफिनेटली कर सकते हो, जैसे मैं कहती हूँ कि हमारा सेलिब्रेशन का पार्ट रहा है डांस, तो आप सेलिब्रेशन में तो है कि भाई हमें डांस करना है। कभी कभी आपका ब्रेकअप होता है कि ब्रेकअप वाला सॉन्ग लगा के क्लब में डांस करते हो, एंड समटाइम यू आर विद योर फ्रेंड्स, अगर आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप उन लोगों के साथ अपना स्ट्रेस खत्म करने के लिए डांस करते हो। तो हर इमोशन के लिए डांस है, एंड डांस तो है कि आप एक्सप्रेस कर रहे हैं या अपने स्ट्रेस को खत्म कर रहे हैं। सो बेसिकली आप एक्सप्रेस कर रहे हो, कभी कभी अपने आप को, प्रोफेशनल डांसर है वो ऑडियंस को एक्सप्रेस करता है। अमृता, you said it so correctly. जहाँ आपने बोला कृष्ण जी का डांस करने का सिचुएशन हमेशा अलग होता था, शिव जी का तांडव है जो उनका गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए है। So basically what we trying to summarize is that dance is a form of expression, and it is a form of self-expression. Whether you're angry, sad, happy, dance can, you can express all your emotions through dance. Yeah, actually. And as such, throughout our topic itself was the art of expression. So I think while we are talking this out, I find that dance is something which is really the way to express yourself, be it in a sad mood, be it in a happy mood, be it when you're tired. I think Roshan was asking that, when you're tired, maybe, you dance and you will feel energetic. Right. So I think dance, somewhere through our conversation, what we are getting is that, dance is the key to many things. It's not only a healing modality, it's also something to, pump up your mood. It is something which you can practice as an art form. It's something which can remove your stress. It's something which I know a lot of ailments can be resolved with the things which, the dance does to our body in terms of blood circulation and all. So, and obviously hearing from you, Amrita, is hearing from an expert who has dance flowing in her blood. And I'm sure you will be back to stage very soon after the lockdown gets over, hopefully very soon. I want to add one more thing here, जो लोग मेंटल डांसिंग के लिए या कह रहे हैं कि कैसे डांस हेल्प करता है, तो अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि मेंटली चैलेंज्ड थे, जिनको अलग अलग मेंटली प्रॉब्लम थी, वहां पे डांस थेरेपीज डॉक्टर प्रेफर करते हैं रादर देन कि आप बच्चों को डांस के साथ, म्यूजिक के साथ आप उनकी प्रॉब्लम को खत्म करिए। सो कितनी बार ये हुआ है कि उनकी प्रॉब्लम खत्म हुई है। मेरे बहुत से स्टूडेंट थे जो कि कैंसर पेशेंट थे, एज इन जब उनका कैंसर थेरेपी खत्म हो गया, कीमो में आप डांस नहीं कर सकते हो, बट जब आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया, बट आप बड़े नेगेटिव हो जाते हो, एंड देन बहुत डिफिकल्ट फेज होता है किसी भी बीमारी से निकल के आना, जहाँ पे उनकी बॉडी काम करना खत्म कर देती है, मसल्स भूल जाती है कि वॉक करना या डांस करना क्या चीज होती है। तो वहां पे मैंने डांस सिखाया है और वहां पे लोगों ने बहुत ग्रो किया है। सो डांस में इतनी पावर है कि आप उसे हर तरीके के लिए, आप मेडिकली यूज कर सकते हो, सेलिब्रेशन के लिए यूज कर सकते हो, फन के लिए यूज कर सकते हो, एंड दैट्स वेयर डांस बिकम अ प्रोफेशन राइट नाउ। So the myth is burst कि डांस आप सिर्फ तब करते हो जब आप खुश होते हो। आप डांस हर सिचुएशन में, हर चीज को ओवरकम करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को ओवरकम करने, अपने लो कॉन्फिडेंस को ओवरकम करने के लिए, खुद को और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाने के लिए, आई थिंक डांस इज वन फॉर्म दैट इज अक्रॉस। एंड पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, वो मिथ खत्म हो गया है कि डांस सिर्फ खुशी के टाइम होता है। Dance is just a form of expression. You have to decide कि आप कैसे, कब, क्या यूज करना है। Awesome, awesome, Amrita. Itna sab kuch you've told us so much. There is so much information that you've given us. I mean, I really want to, immediately after this live, I'm going to get up and look for videos where I can start dancing. Good, you told me there are online tutorials. I'm going to start looking for them and I'm going to begin dancing. So, Amrita, really like to thank you on behalf of the entire team of Sukoon. It was really a pleasure talking to you. Thank you for coming on our show, Amrita. Thank you so much, Amrita. Thank you so much.
Thank you, Anupam. Thank you, Deepa. Thank you, both of you. Thank you, Amrita. See you very soon. See you. Bye.